Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So the candidates IBPS RRBPO. Now this is a very important video for you. Listen this video very carefully before going to the examination. And here we will be discussing some important points and errors committed by certain candidates every year, and you have to avoid those errors. First thing, whenever we prepare for any competition, normally we overplay with our preparation. And due to this overplay, we have different thoughts whether I will clear it, whether I will not clear it, whether I have done enough, whether I have not done enough. So, a fear psychosis runs in the subconscious mind of every candidate. And this fear psychosis is harming the candidates. It drains away your energies, it drains away your confidence. So, first thing is, the moment you have prepared well, have confidence on your capabilities. Don't get upset, don't get confused. You have done what you should have done. There are limited number of candidates those have qualified for mains, and the competition in mains is among us those candidates. So you are one of the lucky candidate who has reached this stage of mains. So your probability of selection for interview is high. So don't get nervous. This is first. Second, taking rest one day before the examination is very, very important. On this channel, I have given various videos about importance of rest before the examination. And some of you ask, sir, what do you mean by rest? Should I watch movies? Should I do some other activities? Rest means anything that relaxes your body. That means off from the studies. You may lay down and relax. You may visit some amusement park and relax. You may talk with your friend who is light-hearted and does not give you any tension, or any activity which is other than study and gives you relaxation, which gives make you relaxed. But you should not engage into any activity that is hectic and ultimately drain away your energy. So purpose of rest is restoration of our energies, because by the time you will finish study tonight, you will be totally exhausted. So you have to rebuild your energies. Third point is, if your center is at other station, travel tomorrow and reach the destination one night before the examination. Many candidates, they travel on the day of examination, and sometime due to traffic jam, due to delay in train, they reach very late in the examination, and then the yearly chance goes away. Every year many candidates, they miss the exam due to railways or due to transportation on which they are aligned. So the best way is go one day before. It may be expensive. You are staying at some place, may be expensive. You can go for cheaper options also if you are not able to afford a good accommodation. But reaching the venue place one day before is always advisable. Another important thing is, during examination, on the day of examination, reach the center at least half an hour before the reporting time. Okay, so that you are relaxed. You have reached the center, you are relaxed. While doing the examination, don't guess. Remain composed, remain cool, read the question carefully. Don't rush with the questions. I will discuss this in detail in tomorrow videos, how you should attempt the exam. So follow these things,
इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। IBPS RRB ऑफिसर कैंडिडेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप आखिर तक सुने, इससे काफ़ी आपको बातें पता लगेंगी और जो आपके लिए मददगार होंगी। ये सारी बातें जो पिछले सालों के कैंडिडेट्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके आधार पर मैंने बनाई है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, इतने दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारा जो दिलो दिमाग है पूरी तरह से बोझिल हो चुका होता है और कभी कभी हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं जमता है कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ओवर प्ले करते हैं अपनी स्टडी के साथ, तो ये जो टेंशन है, ये जो बोझिलपन है दिमाग का, ये हमारे आत्मविश्वास को झंझोड़ देता है। और उसमें से कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई बार अपीयर हो चुके हैं एग्ज़ाम में और हम नहीं कामयाब हुए थे, तो जो हमारी पुरानी थॉट्स हैं वो हमें हॉन्ट करती हैं और वो हमारे आत्मविश्वास को, मनोबल को तोड़ती हैं। तो पहला, अपना आत्मविश्वास टूटने नहीं देना है, मनोबल टूटने नहीं देना है, अपने ऊपर विश्वास जमाए रखना है कि मैंने मेहनत की है, मैं ज़रूर कामयाब होगा। और इसके पीछे तथ्य भी है, क्योंकि जब आप प्री से मेन में आए हैं तो अब आप एक बहुत सेलेक्ट ग्रुप के अंदर हैं, जो बहुत कम लोग हैं जो कि मेन तक पहुंच पाए हैं, आप उनमें हैं। इनमें से लगभग 1/3 लोग इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे, तो इसलिए आपका चांस इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का काफ़ी अच्छा है। तो इसको आपने अपना आत्मविश्वास तोड़ के बिगाड़ना नहीं है, बनाए रखना है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है और आपको ये मान के चलना है कि आप इसको कर लेंगे, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो भी पढ़ाई है आज रात तक ख़त्म करनी है आपने। अगर आपका सेंटर दूसरे स्टेशन पे है तो कल का दिन आप ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करें और सेम डे ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। जहाँ तक संभव हो कल ही कल आप दूसरे सेंटर पहुँच जाएं, दूसरे सिटी पहुँच जाएं। अगर आप एकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगी, तो जो भी वहाँ चीपर ऑप्शंस हैं उसके लिए भी आप जा सकते हैं। वो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों का सिटी में अरेंजमेंट होता है, कुछ का नहीं होता है, मगर बहुत आजकल ऑप्शंस होते हैं जहाँ आप अपने को मतलब ठहरने का इंतज़ाम कर सकते हैं। मगर सेम डे जब आप एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि ट्रेन लेट हो गई, पहुंच ही नहीं पाया कैंडिडेट, बस का नहीं पहुंच पाई, एक्सीडेंट हो गया या ब्रेक डाउन हो गया या जाम लगा हुआ था, नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए अगर हम एक दिन पहले पहुंच जाते हैं तो हम एक निश्चिंत से हो जाते हैं कि हाँ, हम अपने वेन्यू पे पहुंच चुके हैं, अब तो हमें लोकल ट्रैवल करना है सर। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन भी आपको वेन्यू पे जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए, ताकि वहां जाके आप रिलैक्स कर सको। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम से एक दिन पहले कंप्लीट रेस्ट करना, क्योंकि जब आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फैटीग हो चुकी है, आपका मन बोझिल हो चुका है और दिमाग को शांत करना और उसको री एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग पूछते हैं कि सर रेस्ट में क्या करना है, क्योंकि रेस्ट पे हमारे बहुत वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कम्युनिटी पे मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट का लिंक और इस पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे कि रेस्ट का मतलब है, एक तो ये है कि आप सिंपली यू ले डाउन and relax your body. You can go to some amusement park so that you are not studying, you are doing some activities which is giving you entertainment. आप अपने किसी दोस्त के साथ बातचीत कर सकते हैं जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, टेंशन नहीं आनी चाहिए। ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको टेंशन नहीं देता, ऐसा दोस्त जो आपके साथ हंसी मजाक करता है और आपको रिलैक्स कर सकता है, जिससे बात करके आपके मन को सुकून मिलता है, वो आप कर सकते हैं। ऐसे दोस्त से मत बात करना जो ये कहे कि ये कर लिया, वो कर लिया, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया और टेंशन आ जाए, वो नहीं। जो टॉन्ट करता है उससे भी बात नहीं करनी है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका मन शांत होगा, किसी शांत जगह पे आप जाना चाहते हैं, किसी पार्क में जाना चाहते हैं, जो भी आप करें, मतलब रेस्ट का अर्थ ये होता है यहाँ पर कि हमें
अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेनी है एक दिन की और दिलो दिमाग को तरोताज़ा करना है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या करना है, कैसे करना है, इस पर कल मैं एक वीडियो आपको दूंगा, वो आप सुनिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मंजिल के आप नज़दीक पहुंच चुके हैं। भगवान करे आपको सफलता मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।